everyone, this is Pooja Rawat. Welcome again. Today we will read our geography, third chapter, mineral and power resources. In this chapter we will read about the mineral in India and the world and about the power resources. First of all, we will read a story here. From this story we will understand what is mineral. Kiri, this story is about Kiri. Kiri is visiting Shukant in his native place near Dhanbad, and Kiri is amazed to see that large area were black. Means the large area of the Dhanbad is totally black. And Shukant, why is this place so black and dusty? Means nothing was visible. The air is not clear, so see. Ask Sukant why the area is so black and dusty. This is because of the coal mines nearby, Sukant says. And do you see the trucks? They are carrying the mineral coal. What are minerals? Ask Kiri. Sukant says, have you ever seen a baker baking biscuit? The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Means जब भी आप कोई बिस्किट खाते हो तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फ्लोर, मिल्क, शुगर, और क्या उनको अलग अलग दिखते हैं आपको कि उसमें अलग से फ्लोर अलग दिख रहा हो बिस्किट में, कहीं मिल्क दिख रहा हो या कहीं शुगर, वो सब इकट्ठा होकर एक मटीरियल बनाते हैं बिस्किट. एंड जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ number of things that you cannot see, and rock on this earth have several material called mineral. ऐसे ही जैसे आपको बिस्किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, ऐसे ही पत्थर के अंदर, मिट्टी के अंदर भी बहुत सारी मिनरल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं. एंड दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी crust. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. So what is the definition of mineral? Here you can see what is mineral. A natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formation. Some minerals are found in area which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको आज तक टच भी नहीं किया गया है, जो भी बर्फ़ के नीचे, आइस के नीचे दबे हुए हैं, आइसबर्ग के नीचे. सो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशन. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज solubility. Means some minerals are have chemical property, and by this chemical property these minerals are soluble in water. So now we will read about types of minerals. How can we divide minerals? So there are over 3000 different minerals on the basis of composition, and minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. So how can we classify minerals? देखिए यहाँ पे पिक्चर है, डायग्राम है. minerals can be classified into two parts, metallic and non-metallic, and further we can divide it into other two parts, ferrous and non-ferrous. Here, do you know that a rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral? Rock from which minerals are mined are known as ores. Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. Thus, one can easily notice that all minerals are rock, but all rocks are not minerals. Okay, you can say that all minerals are rocks, but all rocks are not minerals. Now we will read about metallic mineral. The metallic minerals contain matter in raw form. And metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristics luster or shine. Minerals के अंदर होता है एक सबसे उसकी बेहतरीन क्वालिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, हीट का कंडक्टर होता है, और उसकी होती है कि वो उसमें शाइन होता है. आयरन ओर की वजह से बॉक्साइड, मैग्नीश ओर आर उसके सब एग्जांपल्स हैं. मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरियस और नॉन फेरियस. मेटेलिक मिनरल्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फेरियस और नॉन फेरियस. फेरियस मिनरल्स
like iron ore, manganese and chromite contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. Means now from this point you can understand that metallic minerals are like iron ore, and in this you can only see the iron, and but in non-ferrous mineral you cannot see any iron like gold, silver, copper or lead. The non-metallic minerals do not contain metals. Limestone, mica and gypsum are example of such minerals. Means अगर आपको कोई example पूछे non-metallic minerals के, तो उसमें आपको बताना होगा कि वो उनमें example है limestone, mica and gypsum. वो non-metallic minerals के होते हैं. ये सब rock होते हैं. limestone, mica, gypsum तो ये non-metallic minerals में आते हैं. The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. Minerals can be extracted by mining, drilling और quarrying. तो मिनरल को जब हम अर्थ से अलग करते हैं तो हम 3 तरह के मेथड का यूज़ करते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग. तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल. तो इसको हम 3 पार्ट्स में करते हैं. ये देखिए डायग्राम है यहाँ पे, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग. माइनिंग 2 टाइप की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शेफ्ट माइनिंग. सी यहाँ पे फिगर है 3.4. इसमें ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल के लिए समुद्र सी के अंदर जो है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ से ऑयल निकाला जाए. एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइन. जो अर्थ के सरफेस के अंदर कोई चीज़ दबी होती है और उसको हम निकालते हैं बाहर, उसको खोद कर निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइनिंग. एंड मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस. और जो ऊपर रहते हैं, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं है जो मिनरल, जो सिर्फ हमें ऊपर की, सिर्फ अर्थ की जो ऊपर सरफेस में मिल जाते हैं, उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू निकालते हैं. सो डीप बोर्ड कॉल्ड शेफ्ट्स and have to be made in the rich mineral deposit that lie at great depth. This is called shaft mining. Petroleum and natural gases occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. So what is drilling? जब हम deep well बनाते हैं और फिर वहाँ से हम minerals को निकालते हैं, उसे हम कहते हैं drilling. And minerals that lie near the surface are simply dug out, but the process is known as क्वेरिंग. जो मतलब थोड़ी सी गहराई पे दबे होते हैं जो मिनरल्स, उनको हम क्वेरिंग करके निकालते हैं और उस प्रोसेस को क्वेरिंग कहा जाता है. डू यू नो दैट यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ अ रॉक कंटेन कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर. किसी भी रॉक को आप देखकर तुरंत बता सकते हो कि इसके अंदर मिनरल्स है या नहीं है, क्योंकि जिस रॉक के अंदर मिनरल होता है वो डायरेक्टली हमको ब्लू कलर का शो होता है. अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में. मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. सम आर फाउंड इन इग्नेस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक, वाइल अदर ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स. जितने अलग अलग रॉक्स में अलग अलग टाइप्स के हमें मिनरल्स मिलते हैं. जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक. अगर आपको कहीं से भी मेटामॉर्फिक मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं तो ज़्यादातर वो इग्नेस में और मेटामॉर्फिक रॉक में ही मिलेंगे. एंड फॉर्मेशन दैट फ्रॉम लार्ज प्लेट्यूज में रहते हैं ये. आयरन और इन कनाडा, आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, आयरन, निकल, chromite and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rock. Sedimentary rocks formation of plains and young fold mountain contains non-metallic minerals like limestone. Limestone deposit of causes region of France, and magnesium deposit of Georgia and Ukraine and phosphate beds of Algeria are some example. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. Now we will read about Asia. Asia में कौन से मिनरल्स होते हैं? देखिए यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है आपको. China and India have large iron ore deposit and the containment produce more than half of the world's tin. चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में. एंड चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स. चाइना ऑल्सो लेड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड
antimony and tungsten. Asia also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. So अगर आपसे पूछे तो इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा हमको आयरन मिलता है. Do you know that स्विट्ज़रलैंड हैज़ no known minerals deposited in. स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा लैंड है जहाँ पे हमको बिल्कुल भी कोई भी मिनरल नहीं मिलता है. वो सरफेस, वहाँ की लैंड सरफेस विदाउट मिनरल है. यूरोप में कौन से मिनरल्स मिलते हैं? यूरोप इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड एंड द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया. आगे है आपका नॉर्थ अफ्रीका. द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन. नॉर्थ अमेरिका के जो मिनरल्स वो 3 जोन में डिवाइडेड हैं. कैनेडियन रीजन, नॉर्थन ऑफ द ग्रेट लेक्स एंड अफाल्चियन रीजन and the mountain range of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield region. Koila is Appalachian region and western corridors have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. साउथ अफ्रीका के मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपसे कुछ जनरल बातें शेयर करूंगी. क्या आपको पता है, डू यू नो दैट अ ग्रीन डायमंड इज़ अ रेयरेस्ट डायमंड. ग्रीन डायमंड बहुत कम मिलता है और वो बहुत ही रेयरेस्ट डायमंड है. एंड द ओल्ड रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. दे डेटेड फ्रॉम 4,300 million years ago, only 300 million years after the earth was formed. तो वो है ओल्डेस्ट रॉक. अब हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे. ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड. Chile and Peru are leading producer of copper. Brazil and Bolivia are among the world's largest producer of tin. South America also has large deposit of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. Now हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे. अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ेरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. The other mineral found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे. Australia is the largest producer of bauxite in the world. It is the leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. And Kalgoorlie and Coolgardie area of Western Australia have the largest deposit of gold. Now next we will read about Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits. Some probably large significant size of deposit of coal in the Transantarctic Mountain and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. Now we will read distribution of iron. Distribution in India. इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से हमको मिनरल्स मिलते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन. इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन और यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन और मिलता है. द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. इन स्टेट्स में हमको सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन और मिलता है. बॉक्साइट, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. मीका कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? मीका डिपॉजिट मेनली ऑकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड. और कॉपर इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ऐसे ही मैग्नीज़ हमें कहाँ मिलता है? मैग्नीज़ इंडिया में मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में. लाइमस्टोन हमें मिलते हैं. मेजर लाइमस्टोन
लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। लाइमस्टोन जो हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं। और गोल्ड के लिए है कोलार इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया। कोलार जगह है कर्नाटका में, वहाँ ज़्यादा मिलता है गोल्ड। एंड दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक माइनिंग ऑफ दिस और आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और सॉल्ट जो है इंडिया में, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का देखो फिगर 3.3 में आपको दिखा रखे सांभर लेक राजस्थान में सॉल्ट को कैसे अलग कर रहे हैं। क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन दिखाया हुआ है, लाइमस्टोन की क्वेरिंग कैसे होती है फिगर 3.7 में आपको शो हो रही है, इंडिया में कैसे दिखाते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास मिनरल्स हैं तो इनको हमें बचा के रखना है, अदरवाइज़ हमारे सारे के सारे मिनरल्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना है रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल्स। मतलब हमारे पास मिनरल्स इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। मीन्स एक ना एक दिन ये मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे। एंड इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। And recycling of metal is another way in which the minerals resource can be conserved। अगर हमें अपने minerals resources को बचाना है तो हमें recycle, reuse और reduce का यूज़ करना होगा। अगर हम इनको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिसाइकल करेंगे, रिड्यूस करेंगे और रीयूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा ये हमारे लिए आगे हम अपनी जनरेशन के लिए इनको बचा कर रख पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सनीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की मदर अपना डे गीज़र ऑन करने से शुरू करती है। एंड सी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। और सबसे पहले उसकी मदर उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करती है, प्रेस करती है। पावर रिसोर्सेज को समझने से पहले ही सबसे पहले आपको एक स्टोरी दे रखी है सनी की, जिसकी मदर उसकी स्कूल ड्रेस को आयरन करती सुबह उठते ही। देन रशेज टू द किचन एंड प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फ्रॉम हिम इन द ब्लेंडर। अब ब्लेंडर और एक जो आयरन है वो दोनों किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव द ब्रेकफास्ट। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट टू द गैस स्टोव फॉर सनी। उसके बाद गैस स्टोव में सनी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार होता है। अब ये सब चीज़ें हमारे पावर रिसोर्सेज है, पावर, गैस, आयरन और गीज़र ऑन करना, ये सब हमारे पावर रिसोर्सेज हैं। उसके बाद वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन। व्हेन मदर स्विच देम ऑफ सी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ मे बी मोर comfortable but its dependency on more may be more comfortable but its dependency on more and more gadget, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. Means हम लोग कितने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी पे और अदर थिंग्स पे, अपने गैजेट्स पे। हम लोग अपना एक भी दिन बिना गैजेट, बिना फ़ोन के, बिना फ्रिज, बिना टेलीविज़न, बिना किसी ऐसे मोबाइल फ़ोन के हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या ये ठीक है? इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होना बिल्कुल भी सही नहीं है। पावर और एनर्जी प्ले अ विटल रोल इन आवर लाइफ। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ऑयल, नेचुरल गैस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जिस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑयल के एडवांटेजेस। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स में हम इन्हें आसानी से ले जा सकते हैं। बेसिक्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बेसिस होते हैं। नेचुरल गैसेस के एडवांटेजेस हैं। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोयल एंड चीपर देन ऑयल, ऑयल से सस्ते होते हैं। उनके डिसएडवांटेज हैं डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग एंड गैस लीकेज। इनसे जो है
ऑक्सीजन हमारी जो है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ता है एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी। नेक्स्ट है तुम्हारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपका आता है फायरवुड और कोयल। फायरवुड के हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। एडवांटेजेस में आपका आता है ईजी एक्सेस होता है, फायरवुड प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब वुड हमें आसानी से भी कहीं मिल जाती है, लकड़ियाँ, उनको हम आसानी से जला के खाना बना सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस है कलेक्शन एंड टाइम कंज्यूमिंग, लकड़ी इकट्ठा करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करता है ये। और डिफॉरेस्टेशन होते हैं, जंगल ख़त्म होते हैं, तो इसलिए लकड़ियाँ जलाना एक अच्छा हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। कोयला के बारे में अगर हम पढ़ें तो एडवांटेज हैं इसके, एक्सटेंसिवली अवेलेबल होता है और एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। डिसएडवांटेजेस है पॉल्यूटिंग सोर्स, पॉल्यूट करता है ये, एंड बर्कली टू ट्रांसपोर्ट, और लेकिन कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाइडल पावर के बारे में पढ़ें अगर हम, तो हाइडल पावर होती है हाइड्रो पावर, जिसको हम पानी से बनाते हैं। तो इसमें है ये नॉन पॉल्यूटिंग होती है, प्रमोट्स इरीगेशन एंड फिशिंग, चीप होती है, बहुत सस्ती होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी इंच लो और एक्सपेंसिव टू सेटअप होती है, इसको लगाना बहुत, कोई डैम हमें लगाना होगा तो बहुत ही ज़्यादा हमें ये एक्सपेंसिव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स के बारे में। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड and fossil fuels are the two main conventional energy sources. Firewood क्या होता है? It is widely used for cooking and heating, and in our country more than 50% of energy used by villagers comes from firewood. Remain of plants and animals which are buried under the earth for millions of years get converted by the heat and pressure into fossil fuel. तो fossil fuel हमारे कैसे बनते हैं? ये हो गया क्योंकि जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा टाइम तक अंदर buried रह जाते हैं अर्थ के अंदर, और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो प्रेशर और हीट की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड एंड द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैन इज फॉर ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जिस्टेड सून। अब हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे। कोयला, this is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine, and the generate electricity. Electricity from koila is called thermal power. कोयला से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम थर्मल पावर बोलते हैं। द कोयला विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर एगो व्हेन जाइंट फेंस एंड स्वैम्प्स गॉट buried अंडर द लेयर ऑफ अर्थ। कोयला इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज buried सनशाइन। बुरिड सनशाइन, दबी हुई सूरज की रोशनी के रूप में हम कोयला को बोलते हैं। कोयले का नाम है बुरिड सनशाइन। एंड द लीडिंग कोयला प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोयला प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। पेट्रोलियम के बारे में है। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल एंड फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. It is found between the layer of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to the refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold. Petroleum और उसकी जो other derivatives होती हैं उनको हम black gold भी कहते हैं. And as they are very valuable, the chief petroleum producing country are, इसके सबसे ज़्यादा main producing countries में आते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया and Qatar and the other major producer are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer of India are Digboi in Assam, Bombay, Hai and Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. ये word कहाँ से आया है? The word petroleum is derived from Latin word petra means rock and oleum means oil. So petroleum means rock oil.
Now we will read about natural gases. Do you know that compressed natural gas CNG is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel? Natural gases is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producer of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gases resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserve in their own. The sharp increase in our consumptions of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause of concern. Unchecked burning of fossil fuels is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuel. अब हम पढ़ेंगे हाइडल पावर के बारे में. हाइडल, व्हाट इज हाइडल पावर?